Okay, good evening, everyone. My name is Abhijit, and welcome to this live stream of Vidya Lankar. So today the session will be about how to score AIR within 500 in GATE, and this session will be specifically for for mechanical engineering students. And we have a very special speaker who will take this session today. Before introducing him to every one of you, uh, let me just wait for some time because few more students are joining in, and like I would also like to introduce students who are outside of Mumbai. I think in Mumbai and Pune, we are well known. Vidya Lankar is well known in Mumbai and Pune. We have almost 12 centers in Mumbai and one center in Pune, where we teach student GATE. But for students who are outside of Mumbai and Pune, and I think for them, I'll give a brief introduction about Vidya Lankar history. Can I go to the next slide? Okay. So for students who do not know Vidya Lankar, for whom we are new, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि this is what Vidya Lankar origin is. Vidya Lankar was founded by Professor C.S. Deshpande, Chandrasekhar Deshpande, and Dr. Sanjeevani Deshpande. So they started in a rented classroom with only 2 students, and it was in the year 1960. Okay, and they believe that knowledge is the only ornament, and with that motto they started Vidya Lankar. And can I go to the next slide? So today, if you see Vidya Lankar as a group, we have these many institutes. Okay, we have Vidya Lankar classes and publications. We have Vidya Lankar Institute for International Education, where we have tied up with many countries, where we offer students with 2+2 program and student exchange program. Then we have Vidya Lankar Polytechnic. VIT is Vidya Lankar Institute of Technology, which is one of our college, engineering college at Wadala. It is in Mumbai. VSIT is also at Wadala, Vidya Lankar School of Information Technology. Congo is our digital vertical. Then we have Admit Abroad, where we train students with courses like GRE, TOEFL, IELTS, all international level exams, and then Skillville, where we help students with skill development courses, and VSB is Vidya Lankar School of Business. So these many groups Vidya Lankar has today, okay, since 1960. Can you go to the next slide? Okay, now today we service more than 30,000 students every year. We have more than 1,000 plus employees, which includes both our backend staff plus our faculties and all our operation staff who help in providing the best of best service. And Vidya Lankar has completed 59 years of being in the education sector. Okay, so this is what Vidya Lankar is today. And for students who are outside of Mumbai and Pune, I would specifically like to let you know that we have courses for you all. Okay, so by the end of this session, if you have any questions related to courses, related to this session or out of this session, you can definitely ask. We will for the time being, when Ketan sir will do his presentation, we will keep the chat box. We will stop the chat box. But once he comes to the end of the session, जैसे जैसे उनका सेशन खत्म हो जाएगा, हम लोग चैट बॉक्स ओपन करेंगे और आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है? So can I go to the next slide? So let me introduce to the speaker today. Okay, he is a very dynamic faculty that we have. He is very young. Since he is very young, क्योंकि young है इसलिए students के साथ बहुत ज़्यादा connect करते हैं. He has done his BTech from Bharati Vidyapeeth, Mumbai. So ज़्यादा senior नहीं है आप लोगों से, जो third year, final year या second year के भी students हैं, आप लोगों से 5-6 साल ही senior है, ज़्यादा senior नहीं है. So he understands well what students' mentality is. So he was ranked 24 in Mumbai University Indian Engineering Service. Okay, AIR 51. He has secured AIR 51. ECIL में he has secured AIR 2.
GATE 2017 and 18, 99 percentile and above. He has cracked many PSUs like IOCL. These are all, in fact, Maharatna PSUs. ISRO, BARC, Bhabha Atomic Research Center. He has cracked SSC, JEE. Worked as assistant manager at LG. That was his initial days after graduation, and now he is with Vidyalankar since last 3 years, and he has been mentoring and teaching students. He has guided a lot of students over the past 3 years. So आज केतन सर आप लोग के सेशन लेने वाले हैं. आप लोग के पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप लोग प्लीज सेशन के बाद चैट बॉक्स में या फिर अपना स्पीकर ऑन करके आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई विल इंट्रोड्यूस केतन सर टू ऑल ऑफ यू. सो ओवर टू यू केतन. That's it. Yeah, thank you, Abhijit. And thank you, Vidyalankar, for giving me this opportunity to speak in front of almost, how many we have? 87 people. Okay, so we are going to start with our presentation without wasting any time. Guys, the motto of current presentation is simple: how to get good rank. And what do you mean by good rank? So guys, good rank is nothing but whenever you have rank less than 500 in GATE examination, you have maximum chance of success. So I find myself enough to guide you on this topic, and that's why I'm here. So guys, let us get started with the session. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंटली कल ही 2-3 दिन पहले ही कुछ नोटिफिकेशन आया है गेट एग्जामिनेशन का, एंड इट विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे. एंड आईआईटी बॉम्बे का जो एग्जामिनेशन होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी लिटिल ऑन टफर साइड. ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला है, क्योंकि अब तक मतलब 3 या 4 ही एग्जामिनेशन हुए हैं फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे साइड, 93, देन 2013 एंड देन 2005. ठीक है, तो 2005 का जो पेपर था वो मुझे पता था, क्योंकि हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने 2005 का पेपर दिया था, तो उन्होंने हमें बताया था कि दैट वाज द टफेस्ट पेपर, एंड टॉपर जो था he got around 57 marks. Okay, तो that was just a thing about IIT Bombay, but डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता. इनफैक्ट 2013 में जो पेपर आया था वो बहुत इजी था. तो ऐसे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बट जो भी पेपर सेटिंग होगा इट विल बी फ्रॉम ऑल दी IITs. तो ऐसा नहीं है कि IIT बॉम्बे से ही पेपर सेट होता है, इट इज बेसिकली सबका कोलैबोरेशन होता है, एंड जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है दैट इज IIT बॉम्बे. ओके गाइस, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर न्यू थिंग्स जो गेट 2021 में आपके लिए स्पेशली आने वाली है, एंड ये कितना आपके लिए बेनिफिट कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज कंडक्टेड बाय IIT बॉम्बे. थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन अपीयर. So if you are someone who plans in a longer duration, like आपको पता है कि मैं अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हूँ, एंड मुझे शायद BE के बाद MTech करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. थर्ड ईयर में अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हो, देन इट इज वैलिड फॉर फर्दर 3 years. थर्ड ईयर में अगर आप अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लेते हो, एंड देन ऑल्सो अगर आपके लाइफ में फेलियर आ जाता है अबाउट गेट एग्जामिनेशन, देन यू विल फाइंड यू हैव वन मोर चांस. देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो गैप क्रिएट होता है आफ्टर योर पासिंग आउट, एंड जो आप नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन करते हो, लेट अस से वो किसी कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कहीं MTech कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट ये होता है गाइज कि आपने जो टाइम होता है बिटवीन पासिंग आउट एंड कोई भी जॉब या फिर फर्दर MTech MS ज्वाइन करने का, वो कम से कम होना चाहिए. ठीक है, एंड ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. ओके, एंड वन मोर थिंग इज देयर कि अ कैंडिडेट कैन गिव एग्जाम्स ऑफ 2 पेपर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल में आप ME एज वेल एज XE दोनों का एग्जाम दे सकते हो, दोनों के फॉर्म्स जो है वो फिलअप कर सकते हो. पहले ऐसे नहीं था. ठीक है, एंड ऐसा भी है कि जो भी पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल चीज आ गई है, दैट इज नथिंग बट MSQ. ये क्या है? दीज आर नथिंग बट मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस. तो जनरली ऐसा होता था कि एक जो क्वेश्चन है उसके 4 आंसर से 4 में से कोई एक ही सही है. ठीक है, अभी उसमें से 1 या फिर 2 सही हो सकते हैं. Sometime it could be all of the above as well, just like engineering services में होता है, वैसा ही होने वाला है यहाँ पे. ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है MSQ में. ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है. मैथ्स का जो पोर्शन था, जो पहले 15 मार्क्स के लिए आता था, वो अभी आने वाला है 13 मार्क्स के लिए. जो 2 मार्क्स है आपके वो टेक्निकल में ऐड हो चुके हैं. ठीक है, जो एक अच्छी बात है. तो ये कुछ चेंजेस है गाइज, एंड मेरे ख्याल से ये बेहतरीन चेंजेस है. अभी मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ XE के बारे में गाइज.
तो देखो ऐसा नहीं, अच्छा एक रूमर्स है कि जो नए कुछ 2 ब्रांचेस ऐड किए गए हैं, आई गेस इट इज, मैं भूल रहा हूँ उनके नाम, बट बहुत से रूमर्स आए थे कि ये एडिशनल सिलेबस तो नहीं है। नहीं नहीं, वो एडिशनल ब्रांचेस है गए, जैसे मैकेनिकल, सिविल, सब अलग अलग डोमेन में अपने अपने एग्जाम देते हैं, वैसे ही यू विल फाइंड कि वो भी एक नई 2 ब्रांचेस है वो ऐड हो चुकी है। तो इसमें आपका सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस में अगर चेंज बोला जाए तो मैंने यही सब कुछ आपको जो भी चीजें हैं वो बता दी है, या फॉर्मेट में एक तरह से आने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं मैकेनिकल के, स्पेसिफिकली मैकेनिकल, तो बहुत से माइनर से चेंजेस है। जैसे कुछ शेयर सेंटर वगैरह ऐसे जो कंसेप्ट है वो फॉर्म में ऐड कर दिया है। उसके बाद एप्टीट्यूड जो है उसमें एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग जो पहले नहीं आता था वो अभी ऐड कर दिया है। तो ये सब चीजें हैं, एंड ये जो है वो डिटेल में आपको आपके जो भी प्रोफेसर है वही बताएंगे जो आपको विद्यालंकर में पढ़ाते हैं। नाउ कमिंग टू दी एक्सी और इंजीनियरिंग साइंस, देखो ये एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें जनरली बहुत कम लोग जो है वो एग्जाम देते हैं। एंड इसका जो स्कोप है, अगर हम मैकेनिकल को कंसीडर करें तो मैकेनिकल एंड एक्सी, इन दोनों की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इज बेटर, एंड इससे मैकेनिकल का जो गेट स्कोर होता है इससे आप पीएसयूज, आईएससी, आईआईटी सभी में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सी में थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, जनरली जो पीएसयूज होती है वो एक्सी का स्कोर जो है, गेट एक्सी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करती, वो मैकेनिकल, सिविल जो भी कोर ब्रांचेस है उन्हीं का जो स्कोर है वो एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन जिन भी स्टूडेंट को एक्चुअली एमटेक करना है या फिर एमएस करना है फ्रॉम प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईआईटी, आईएससी, तो आपके लिए एक्सी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा हो सकता है। पहले ऐसा था कि सिर्फ आप एक्सी दे सकते हो या फिर एमई दे सकते हो, अभी अच्छी बात यह है कि आप दोनों ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो, दोनों का एग्जाम ऑब्वियसली वो अलग अलग डेट पे होगा एंड तभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं एक्सी स्पेसिफिक सिलेबस बता दूं गाइज, तो आपको करना क्या है, देखो 15 मार्क्स का जो है वो आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, एंड इट इज कॉमन, जो बाकी ब्रांचेस के लिए वैसा ही आपके लिए भी होगा। एक्सी की स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको 2 सेक्शंस होते हैं, एंड इन दोनों सेक्शंस में यू विल फाइंड आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मैंने जो स्लाइड पे दिखाया हुआ है, XCB मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स आप ले सकते हो। इसके अलावा आप लेटेस्ट से आपने थर्मोडायनेमिक्स ले लिया, तो आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के ही क्वेश्चंस होंगे। तो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड हो गया एंड 85 मार्क्स के हो गए ये सभी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी पोर्शन होगा उसके क्वेश्चन। एंड जनरली जो सिलेबस होता है वो जो मैकेनिकल में आप सीखते हो उसी के क्लोजर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि यू गाइस कैन अपीयर फॉर 2 एग्जामिनेशन। एंड अभी इससे आउटकम क्या है वो देख लेते हैं। आउटकम ये है, व्हाट आफ्टर एक्सी, तो एक्सी आप चले तो जा रहे हो लेकिन एक्सी का बेनिफिट क्या है। लेट से आपने एमई भी दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी दिया एंड एक्सी के लिए भी दिया, मैकेनिकल में लेट से अच्छा स्कोर नहीं आता है, एक्सी में आपका अच्छा रैंक आ गया जो इवेंचुअली आ जाता है, क्योंकि मैकेनिकल में आप बहुत सारे सब्जेक्ट स्टडी करते हो, यहाँ पे सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हो, इसके साथ आपको एप्टीट्यूड भी करना है। ठीक है, अभी गाइज इसके बाद अगर एक्सी आप देते हो, आपका अच्छा रैंक आ जाता है। अच्छा रैंक क्या होगा गाइज एक्सी में, अच्छा रैंक इज लेस देन 100, क्योंकि अगर आपको आईएससी में जाना है, आईएससी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है एंड मेरे ख्याल से अगर आपको उसमें एमएस करना है या फिर एमटेक करना है तो ये कुछ कोर्सेज है जो आईएससी बैंगलोर प्रोवाइड करती है। मटेरियल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट साइंस, अर्थ साइंस, नैनो साइंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें जो है वो आईएससी बैंगलोर की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सी स्कोर। ठीक है, अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो आईआईटीज में भी बहुत से ऐसे जो भी आईएससी में कोर्सेज है वो आईआईटी में भी अवेलेबल है। मटेरियल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनर्जी साइंस, ये कुछ हटके है जो भी आप नॉर्मली इंजीनियरिंग में पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग है ये। ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि सभी आईएससी में, सभी आईआईटीज में, सभी एनआईटीज में एंड एक अकेला जो आईएससी है उसमें ये कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप जब एक्सी से अगर एग्जाम देते हो अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल, तो आपका ये भी एक बेनिफिट है कि अगर वहां कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आपके चांसेस है अच्छे खासे। आप इनमें से कोई भी आपको जो फेवरेट 2 सब्जेक्ट्स है उनको चूज कर सकते हो। अगर मैं मैकेनिकल स्पेसिफिक बात करूं तो ये जो पहले 4 सब्जेक्ट है BCD, ये मेरे ख्याल से मैकेनिकल इंजीनियर जो भी होते हैं उनके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स इज नथिंग बट सॉम, मटेरियल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से कोई भी 2 चूज करना है एंड एप्टी तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, राइट। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया गाइस, दीज आर दी ईयर जिसमें आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट किया था एग्जामिनेशन। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज लास्ट 2 पेपर का अगर एनालिसिस करूं तो 2013 एंड 2015 में जो भी, सॉरी 2013 एंड 2005 में जो भी पेपर आया था उसमें यू विल फाइंड कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था गाइस। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। मतलब आप देखोगे कि जो फोकस है ऑन मेजर सब्जेक्ट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 15 एंड 16 मार्क्स के लिए आया था,
तो अगर आप देखोगे गाइस, तो जितनी भी आईआईटी पेपर सेट करती है या फिर जितनी भी आईआईटी से कंडक्ट कराया गया है एग्जामिनेशन, उसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यूनिवर्सिटी में ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन वहां आपको बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड 15-16 मतलब ये बहुत बड़ा रैंक बूस्टर है। अगर आप यहाँ पे 15 या 16 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, देन आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाएगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स कि सर कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार मेरा इसके लिए बहुत ही सिंपल आंसर है, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, हार्डली 1-2% क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर लेटर से एक क्वेश्चन भी आ गया और वो 2 मार्क्स का है, तो गाइस अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप सही से कर लेते हो, तो आपका जो रैंक होता है वो ऑलमोस्ट 1000 से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाता है मतलब अगर लेटर से आप पहले विदाउट अटेम्प्टिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका लेट से रैंक आ रहा था 2000, तो अगर आप 2 मार्क्स और ज्यादा ले आते हो तो यू विल फाइंड कि आपका रैंक जो 1200-1400 के करीब आ जाएगा। ठीक है, ये वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू पेपर एंड विद रिस्पेक्ट टू स्कोर। बट आप अगर देखोगे तो जनरली पॉइंट के डिफरेंस से रैंक जो है वो डिफर करते हैं। इसीलिए गाइस इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है, विच सब्जेक्ट यू शुड फोकस, इट इज ऑल सब्जेक्ट, यू शुड बी परफेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट। प्लीज ये जो अपना यूनिवर्सिटी वाला जो हम लोग ट्रिक यूज करते हैं ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, पास ही होना है, यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। ओके, नाउ हाउ टू डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब लोग आपको इन्फो दे देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है आपको, लेकिन कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, these are the few tips guys, and it is a continuous cycle। शायद आपने ये एक साइकिल है, इसे डेनिम साइकिल बोलते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, इट्स अ मैनेजमेंट थियोरी। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपको ये साइकिल फॉलो करना है। एंड दिस इज अ साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है, शायद आप अगर लास्ट ईयर में होंगे कुछ स्टूडेंट तो आपने ये सुना होगा काइजन वगैरह या फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थियरीज। तो ये है क्या गाइज, इट्स अ काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी जो आपको इंप्रूव करती है कंटिन्यूअसली। ओके, नॉट जस्ट अ सिंगल डे। आप हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करोगे जिससे आपको ओवर द टाइम इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है गाइज, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू प्लान इट। ठीक है, आपका जो भी प्रिपरेशन है, आपका जो भी स्टडी है, आप उसे प्लान करोगे। ठीक है, प्लान, अच्छा अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है देन इट इज वेल एंड गुड, कोचिंग पीपल विल प्लान फॉर यू जस्ट लाइक विद्यालंकार। ओके, एंड देन मूविंग ऑन, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। सब कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा तो कुछ होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत से क्वेश्चन जो सिर्फ रिपीटेटिवली आ रहे हैं, पिछला जो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे आ गया, उसी से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्सेस। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये जो चीज है, एक तरह से देख रहे हो ना मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लान, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, यू विल रिवाइज, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट में जो भी आपको प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम से आप क्या करोगे, लेट अस से टेस्ट देने के बाद मुझे पता चला 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। ओके, तो यू विल फाइंड कि अभी मुझे जो 5 क्वेश्चन नहीं आए उनका कंसेप्ट फिर से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन अंडरस्टैंड स्टार्ट हो जाता है, अगेन यू विल रिवाइज, यू विल टेस्ट योरसेल्फ, एंड ये जो साइकिल चलता है of continuous improvement, it will go up to the point till you succeed। ठीक है, तो it is very simple। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको हेल्प कर सकती है in order to get a good rank। ओके, नाउ चलो अभी समझ लेते हैं कुछ की पॉइंट्स को कि एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्टिंग योरसेल्फ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप यूनिवर्सिटी में कितना भी बुरा परफॉर्म किया है, फिर कितना भी अच्छा परफॉर्म किया है, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो खुद को ओवर एस्टिमेट मत कर लेना कि मैं इजीली कर जाऊंगा। अगर बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे तो खुद को अंडर एस्टिमेट भी मत करना। ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर वे ऑफ स्टडिंग। ठीक है, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटिंग होल सिलेबस। आपने शायद ये सुना होगा कि जो कट ऑफ वगैरह होता है, इट इज अराउंड लेटर से, जैसे टॉपर के मार्क्स जो आते हैं वो 90-92 तक आते हैं। ओके, तो आप सोच सकते हो कि सर 8 मार्क्स का तो उसने भी रॉन्ग कर दिया था, बट वो 8 मार्क्स का रॉन्ग करने के लिए उसने पढ़ा तो 100% ही था। ठीक है, तो आपको जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। जो भी चीजें में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसे समझने का ट्राई करो। देयर आर वेरियस सोर्सेस, इन सब सोर्सेस से आप ट्राई कर सकते हो कि कोई चीज अगर मुझे नहीं समझ रही है तो उसको मैं कैसे फुल प्रूफ कर पाऊं। ये फुल प्रूफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स। देखो कोई सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके फेवरेट होते हैं ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, एंड आप जब उनको गेट में पढ़ते हो देन आपको उसमें अच्छा खासा ग्रिप होता है। जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैन्युफैक्चरिंग।
जनरली मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टडी करते हम लोग, तो ये जो वीक सब्जेक्ट है गाइज, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड इन वीक सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। एंड रिमेंबर दिस, पहला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है, कंप्लीट करना सिलेबस को। जस्ट इट इज नॉट जस्ट कंप्लीटिंग, इट इज कंप्लीटिंग विद परफेक्शन। आपको चीजें सही से आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज द ये क्या बोलेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के मतलब आप तो करेंगे यार, जहां पे भी जो लोग प्रिपरेशन सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं मजाक में, वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करो, एंड ऑलवेज ट्राई टू नोट इट डाउन। जो भी गलतियां आपसे हो रही है, ऑलवेज ट्राई टू नोट इट डाउन। फिगर आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड स्टडी दैट फर्स्ट। ये अगेन ये कब पता चलेगा गाइस, जब आप कंप्लीट सिलेबस कर लोगे, आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, यहाँ मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, यहाँ मुझे ज्यादा अटेंशन देना जरूरी है, ठीक है। आइडेंटिफाई वीक टॉपिक। सब्जेक्ट में भी बहुत सी चीजें जो है वो वीक हो सकती है, ठीक है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जनरली हम लोग अवेलेबिलिटी, एंट्रोपी, ये सब चीजें छोड़ देते हैं इन डिग्री, बट यहाँ वो चीजें आपको पूछी जाएंगी। इसीलिए इन डेप्थ टॉपिक का एनालिसिस करना है, रिसर्च नहीं करनी है। प्लीज ये मैं क्लियर कर दूं आपको। लोगों को जनरली ऐसा होता है, स्टूडेंट को अगर कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया तो वो दिन रात वही पढ़ते हैं, पूरा 10 महीना वही पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसमें वो चैंपियन हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सभी सब्जेक्ट में कितने डेप्थ तक जाना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च मत करो। एंड डेली शेड्यूल जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो तो आपको शायद टाइम का इंपॉर्टेंस समझ जाता है। एंड ओवर द टाइम जैसे आप प्रिपेयर करोगे गाइज, आपको पता चलेगा कि टाइम बहुत फास्ट फ्लो होता है, एंड वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, शेड्यूल बनाना। नाउ अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 21 एस्पिरेंट्स के बारे में, जो 2021 में एग्जाम फेस करेंगे एंड जो 2022 में फेस करेंगे, तो उनके लिए कुछ चीजें हैं। लाइक टोटल टाइम जो आपके पास है वो 6 मंथ है। अभी आप बोलोगे सर ये 6 मंथ का टाइम जो है वो इनफ है या नहीं है? इट इज मोर देन इनफ गाइज, क्योंकि ये जो टाइम आपके पास है इसमें आप 24 आवर्स कंप्लीट यूज कर सकते हो। आपके पास ना कोई कॉलेज है, ठीक है, मतलब कॉलेज है लेकिन उनके लेक्चर जो आपको फिजिकली कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन हैव टाइम मोर। जो आप अगर मैं पिछले पास से कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर के अलावा हमें इस साल बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन सब चीजों में आपके पास जितना भी टाइम है उसको आपको प्रॉपरली फ्रेम करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताऊं, प्लानिंग एस्पेक्ट क्या होता है, जैसे एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें कंटिन्यूअस सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से आपने ये जो भी एप्टीट्यूड एंड मैथ्स है उनको दिन में 1 घंटा भी दे दिया तो भी बहुत है, ठीक है। तो लाइक फॉर हाफ एन आवर यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो हाफ एन आवर में लेट्स से आप कितना कर लोगे, 20 या 30 क्वेश्चन, इट्स मोर देन इनफ। मैथ्स आपने प्रॉपरली उसको स्टडी कर लिया है तो मैथ्स आधे घंटे के लिए आप सॉल्व करो, आप उसमें कितना 20-30 क्वेश्चन कर लोगे, मतलब आप दिन का एक तरह से क्वेश्चन करे जा रहे हो, ठीक है गाइस। तो 20-30 क्वेश्चन इनटू 6 मंथ्स, यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग। सिर्फ 1 घंटा देने से ये सब चीजें हो रही है। सिमिलरली अगर आप 22 एस्पिरेंट हो तो आप थोड़े से रिलैक्स हो। आपने अभी ये रिलैक्सेशन में टाइम पास नहीं करना है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, जब चीजें बहुत दूर होती है तो हमें लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है कर लेंगे। लेकिन गाइज ये जो अपना एटीट्यूड होता है इसे चेंज करना सीखो, एंड आपको एक प्लान अप्रोच से मूव करना पड़ेगा। आपको मेरे ख्याल से अगर आप 22 एस्पिरेंट हो तो आपने सिर्फ यही समझना है कि मुझे जो भी सब्जेक्ट अभी सिखाए जा रहे हैं या फिर जो भी सब्जेक्ट मैं सीख रहा हूँ उन्हें मुझे 100% फुल प्रूफ करना है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो भी क्लासेस होती है, देन जो भी लेक्चर्स होते हैं, उनमें आपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये मेरे ख्याल से प्राइम माइलस्टोन होगा फॉर एवरी एस्पिरेंट हु इज लुकिंग फॉर गेट 2022। ओके, अगेन जो एप्टी एंड मैथ्स का सेक्शन है वो आप 1 या फिर 2 घंटा दे सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हो आप 22 वाले एस्पिरेंट्स। 21 के लिए टेक्निकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स एंड एप्टी आप 1 आवर भी करोगे तो भी इनफ है। फॉर 22 यू कैन गिव 1 आवर, 1 or 2 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, आप कैसे मैनेज करते हो। बट जो 22 में अपेयर करने वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सब्जेक्ट को अच्छे से समझो। ओके, दीज आर फ्यू मार्क्स गाइज। अगर आपकी एम्स ऐसे कुछ है, आपको लेट अस से आईएससी से एमटेक करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको जो स्कोर है वो जनरली 65 प्लस होना जरूरी है, एंड अगेन स्पेसिफिक, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर मैं एक जनरल रैंक वाइज बता दूं आपको, तो रैंक वाइज दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आपका रैंक जो है वो इट इज लेस देन 200 और 300, यू विल फाइंड कि आप आईएससी में सीधा रैंक के बेसिस पे
क्लासिफिकेशन नहीं करते, आपका एक इंटरव्यू भी होगा एंड तो वहां पे बहुत अच्छे से आपका नॉलेज चेक किया जाता है। सिमिलरली आईआईटीज, इसके बाद आती है पीएसयूज। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, तो वैसे ही आपने आपका जो स्कोर है वो एम करना चाहिए। नाउ दीज आर फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज गाइज। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है जो आपका टेक अवे हो सकता है फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इंजीनियरिंग में जनरली हम लोग टाइम को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम लोग घंटों बहुत सी ऐसी चीजें करने में वेस्ट कर देते हैं जिससे कोई भी क्वालिटी एडिशन नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोलता आपने 100% प्रोडक्टिव रहना जरूरी है, बट आपके पास जितना भी टाइम है उसको फ्रेम करना सीखो, उसको यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। एंड ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे आप प्रिपरेशन फेज में जाओगे, जैसे आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे, आपका एम डिसाइड करोगे, मेरे ख्याल से ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने खुद को रेडी करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट यू विल बी अगेन प्रैक्टिसिंग ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि लेट अस से देयर आर 65 क्वेश्चन, तो 65 में से 65 ही नए टॉपिक के नहीं होते या फिर नया कुछ कंसेप्ट नहीं होता। बहुत से टाइम पुराना जो कंसेप्ट है उसमें वैल्यूज चेंज करके थोड़ा सा चेंजेस करके आपको दे देते हैं। तो इसीलिए जो पीवाईक्यू है, मेरे ख्याल से पीवाईक्यू का एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन हो जाना बहुत जरूरी है। मैंने भी वैसे ही किया था, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। देन रीड नोट्स एंड कंप्लीट द सिलेबस, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्ट विद इजी सब्जेक्ट। देखो आपने ना सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है। मेरे ख्याल से इजी सब्जेक्ट से जब आप स्टार्ट करते हो, लेट अस से देयर आर टोटल 15 सब्जेक्ट, उसमें से आपने 5 सब्जेक्ट जो इजी है वो कर लिए, तो आपके पास एक थोड़ा सा बैकअप आ जाता है कि सर हाँ मेरा कुछ तो प्रिपरेशन हुआ है, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हार्ड सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, हार्ड सब्जेक्ट तक भी जाना है एंड उसको भी उतने ही परफेक्शन से करना है जितना आपने इजी सब्जेक्ट किया, ठीक है। गिविंग मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि एक लेवल आएगी आपके लाइफ में जब आप प्रिपेयर करोगे एंड आपको ये पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आ रहा है, ये कैसे, या फिर मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो अप टू द लिमिट है या नहीं। इसका एक ही जरिया है चेक करने का, इट इज नथिंग बट मॉक टेस्ट। तो आप जब टेस्ट दोगे तो आपका वहां पे जो रैंक आता है, मार्क्स आते हैं, वो आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है वो बताते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने भी टेस्ट होते हैं, या फिर लेट अस से 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो आपका स्कोर 70 प्लस अगर जा रहा है, देन इट इज इनफ कि आप जो आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है इट इज गुड इनफ, ठीक है। मतलब आप थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट से 80 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर 70 से नीचे जा रहा है गाइस, तो इट इज अ रीजन टू वरी, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो गाइस ये जो सिंबल है या फिर ये जो इंडिकेशन है, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देती है, ठीक है। इसीलिए ये मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग डिले करते जाते हैं कि जब एग्जाम आएगी तब देंगे, नहीं, वैसा नहीं होता। मॉक टेस्ट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी देनी चाहिए, मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ में होती है वो भी देनी चाहिए। उनका एक टाइम टेबल शेड्यूलिंग बनाना जरूरी है, प्रोवाइडेड आपने सब कुछ चीजें समझ ली है। जो सेकंड पॉइंट है रीड नोट्स एंड कंप्लीट सिलेबस, इसके बाद है। ऐसे नहीं आपको कुछ आता नहीं, आप सीधा मॉक टेस्ट दे रहे हो और डिप्रेस हो जाओगे, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। नाउ बेस्ट टाइम टू स्टडी, रिमेंबर दिस गाइज, आपको कभी भी ट्रेन योर ब्रेन वाला जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। देखो ऐसा है गाइज, आपका जो भी पसंदीदा टाइम है, लाइक कुछ लोगों को सुबह स्टडी करना पसंद है, कुछ लोगों को इवनिंग में स्टडी करना पसंद है, नाइट में, कुछ लोग आफ्टरनून में भी कर लेते हैं। तो वो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर जो टाइम स्लॉट होता है वो एक तरह से फिक्स कर दो कि इतने टाइम में मैं गेट का प्रिपरेशन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये जो टाइम होता है ये आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि देखो मैं एक आपको एडवाइस दे सकता हूँ। जैसे मेरा, अगर जब मैं प्रिपेयर करता था तो फॉर मी नाइट टाइम वाज बेस्ट। तो मैं कभी भी लेट अस से 8 टू अप टू 2, ठीक है, वो 6 आवर्स का प्रिपरेशन रहता था। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं थे। बट ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके। लोग जो देखो, जो भी आपको कोई भी चीजें बता रहा है ना, उसे कभी भी आप अपने लाइफ में मॉडिफाई करके अप्लाई करो, एज इट इज अप्लाई मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, सभी का वे टू टैकल अ पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट। तो इट्स योर व्यू, जो भी सामने वाला एडवाइस दे रहा है उसको एज इट इज यूज मत करो, उसको मॉडिफाई करो। तो गाइस ये जो टाइम है ये आपने डिसाइड करना है एंड आपने प्रॉपर्ली शेड्यूल बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 घंटे के लिए आप एप्टीट्यूड प्लस मैथ दोनों करोगे एंड बाकी जो भी टाइम मिल रहा है उसमें आप क्या करोगे, आपका जो भी टेक्निकलिटीज है उनको इम्प्रूव करोगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन जो होते हैं इनको कभी भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करो, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। इजी वाले ऐसे होंगे जो आपने पहले देखते ही सॉल्व कर दिए, मॉडरेट में थोड़ा आप डिफिकल्टी आया एंड डिफिकल्ट वाले जो है वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। इजी वालों को मैं नहीं बताता कि ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा सॉल्व हो गया तो वो अगले टाइम भी सॉल्व हो जाएगा। मॉडरेट जो है उसको सिंगल स्टार लगाओ, डिफिकल्ट जो है उसको डबल स्टार। अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो उसमें जनरली मॉडरेट के जितने भी क्वेश्चन है, मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट, वो आप सॉल्व करोगे।
सेकंड रिवीजन में आप देखोगे कि मॉडरेट अभी आपको आने लगे हैं, तो डिफिकल्ट पे ज्यादा फोकस करो। थर्ड रिवीजन में आपको पता चलेगा शायद आप इजी वाले क्वेश्चन भूल सकते हो, इसलिए थर्ड रिवीजन में सभी को एक साथ सॉल्व करना है। तो इससे होता क्या गाइस, आपका जो टाइम है रिवीजन टाइम इफेक्टिवली कम हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। एक होगा इजी, दूसरा होगा मॉडरेट, तीसरा होगा डिफिकल्ट। इजी वाले वो है जो आपने पहले बार देखे एंड आपसे सॉल्व हो गए। मॉडरेट में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई, शायद कोई फॉर्मूला भूल गए वगैरह वगैरह। डिफिकल्ट ऐसा है जिसका कंसेप्ट आपको समझ ही नहीं आया, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आया। इनको मार्क करेंगे हम लोग फर्स्ट रिवीजन में। आप मॉडरेट एंड डिफिकल्ट को सॉल्व करो, सेकंड वाले में सिर्फ डिफिकल्ट दो, एंड थर्ड वाले में इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, ये तीनों को सॉल्व करो। ठीक है, उससे होगा क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी को इग्नोर किया और एंड में जब एग्जाम में वो इजी वाला आ गया तो वही आप भूल गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, ये मेरा स्टेटमेंट है और बहुत जगह मैंने यही बताया है कि आपने जो भी आप पढ़ रहे हो इनको प्रॉपरली अरेंज करना, प्रॉपरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि आप 5-6 पेन का यूज करो, रेड ग्रीन वगैरह वगैरह, उससे नोट्स को खूबसूरत बनाओ। नोट्स को खूबसूरत नहीं बनाना है, नोट्स को नॉलेजफुल बनाना है, एनर्जी को कंसंट्रेट करना है। ये मैकेनिकल का टर्मिनोलॉजी है गाइस, अगर मैं सबने आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, एक ही स्टेटमेंट है कि आपको आपकी नोट्स की जो एंट्रोपी है उसको जीरो के क्लोज रखना है। ये जितने लोगों को भी एंट्रोपी टॉपिक पता है उनको ये क्लिक हो जाएगा कि क्या है। नोट्स की एंट्रोपी कभी भी जीरो के क्लोज रखो, मतलब उसमें नॉलेज का कंसंट्रेशन कभी भी हाई होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर अच्छे अच्छे कलर से लिखना पसंद है तो यू कैन डू इट यार, मैं ऐसा कुछ अपोज वगैरह नहीं कर रहा, बट मेरे ख्याल से आपने नोट्स ऐसे बनाने चाहिए कि वो पढ़ के आपको सभी जितने भी बुक्स जहां से भी आपने रेफरेंस लिया था, जहां से भी आपने सीखा था, वो उसमें कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग चीजों के अलग अलग नोट्स मत बनाओ, सबको कॉन्सेंट्रेट करना सीखो। ओके, शॉर्ट नोट्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स कब बनाने, ये भी मैंने पहले बताया होगा शायद। शॉर्ट नोट्स आप तभी बनाते हो जब आपके जो हैंड रिटन नोट्स है, लेट अस से गाइस हैंड रिटन नोट्स इज ऑफ 300 पेजेस, वो 300 पेजेस वाले जो नोट्स हैं वो आपको कंप्लीटली याद हो चुके हैं, आपको ये तक पता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे जाओगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स कंप्राइजेस ऑफ क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों अगर आपने एक बार रिवीजन किया नोटबुक का, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स ही पढ़े जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कंसेप्ट आप भूल जाते हो। आपका कंसेप्ट कहाँ है? आपका कंसेप्ट आपके हैंड रिटन नोट्स में है, एंड ये जो हैंड रिटन नोट्स वाला कंसेप्ट है यही आपको गेट में रैंक लाके देगा, ना कि फॉर्मूले। सिर्फ फॉर्मूले से अगर गेट में आंसर आ जाता तो सबको ही टॉपर होता। ठीक है, इसीलिए ये नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना मॉक टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉक टेस्ट में क्या करना है यार। मॉक टेस्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि सर मेरा रैंक घटिया आ रहा है, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है यार, ये आपको कैटेगराइज करने के लिए नहीं है, आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आप बाकी लोगों से कितना पीछे हो, नहीं, आपको ये बताने के लिए कि आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, आप जो भी प्रिपेयर करते हो, जो भी दिन भर कर रहे हो, ये अप टू द मार्क है या नहीं। समझ रहे हो आप? तो please never ever compare yourself on the basis of rank which is displayed in any mock test. मॉक टेस्ट में बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो दो दो टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं, एक से वो पहले बार पेपर देख लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर से 2 महीने बाद वही पेपर सॉल्व करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं मॉक टेस्ट में। ये मेरे सामने वाला एग्जांपल है, क्योंकि दिल्ली में जब मैं था मेरे रूममेट भी ऐसे कुछ थे जो ऐसा कुछ करते थे। ठीक है, उनका रैंक 1 आता था, मेरा आ जाता था 1000-1500, मुझे लगता था कैसे 1 आ गया। बाद में पता चला था कि उन्होंने 2-2 टेस्ट सीरीज ली हुई थी। 2 टेस्ट सीरीज मतलब एक ही इंस्टीट्यूट की 2 टेस्ट, सेम टेस्ट सीरीज 2 बार परचेस करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसे नॉर्मल में पेपर देते हैं, उसके बाद फिर से देख के अच्छे से देते हैं, रैंक अच्छा ले लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमें डिप्रेस करता है, हमें नहीं पता उसने ऐसा कुछ किया है। तो गाइस प्लीज एक बॉटम लाइन बता देता हूँ इस स्लाइड की, दैट मॉक टेस्ट आर ओनली फॉर योर परफॉर्मेंस चेकिंग। आप जो भी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, वो अप टू द मार्क है या नहीं वही आपको बताएगा। तो कंपेयर मत करना खुद को ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट। जो आपका एग्जामिनेशन होगा गेट का इन फेब, वो जो 3 घंटे होंगे ना, उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मॉक टेस्ट से खुद को जज मत करना एंड डिप्रेस मत होना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओवर द टाइम जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे, मोटिवेशन जो होता है वो लूज हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है टेम्पररी मोटिवेशन, दूसरा होता है परमानेंट मोटिवेशन। टेम्पररी मोटिवेशन क्या होता है, किसी ने आपको बता दिया, जैसे अभी मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये टेम्पररी मोटिवेशन है। ठीक है, तो इससे शायद आपका पे जो इफेक्ट होगा वो शायद 1 मंथ के लिए होगा, 1 मंथ नहीं, 1 मंथ बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, सोचोगे कि नहीं हो सकता मेरे से। टेम्पररी मोटिवेशन को किल करो, परमानेंट मोटिवेशन लाओ। परमानेंट मोटिवेशन कहां से आता है? परमानेंट मोटिवेशन आता है आपके इमेजिनेशन से।
मैं मतलब पर्सनली आप ये इमेजिन करो कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ, मैं फेमस हो चुका हूँ, मेरे इंटरव्यूज आ रहे हो यहाँ वहाँ, मुझे लोग बुला रहे हैं, ठीक है, मुझे ये पीओसी का कॉल आ रहा है, मुझे आईएससी का कॉल आ रहा है। सपने बड़े बड़े जब देखोगे तो अंदर से मोटिवेशन आता है। आफ्टर लाइफ जो भी आप एग्जाम देने वाले हो गए, इसके बाद आफ्टर लाइफ जब देखोगे कि एग्जामिनेशन के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, क्या क्या चीजें मिलती है, मोटिवेशन आता है। ये एक तरह से परमानेंट मोटिवेशन है। टेम्पररी मोटिवेशन के पीछे मत जाओ, ये मेरा मानना है। इट्स अप टू यू अगेन। तो व्हाट यू कैन डू, जो भी आफ्टर लाइफ है, जैसे ट्रेनिंग होती है बहुत सी पीएसयूज में, या फिर जो भी पीएसयू उनकी सैलरी स्ट्रक्चर है, ऐसे वीडियोस बहुत से है यूट्यूब पे, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। उससे आपको मोटिवेशन आता है, क्योंकि आप इमेजिन करते हो उस तरह की लाइफ को। जब आप उस तरह की लाइफ को इमेजिन करते हो गाइस, आपको अंदर से मोटिवेशन आता है, वो परमानेंट है, वो किसी और ने नहीं डाला है आप में, आपके इमेजिनेशन आपको बता रहे हैं। एंड गाइस यू विल फाइंड कि आप मतलब आपने बहुत से बार सुना होगा कि अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता वगैरह मत करो, बट दैट वाज फॉर सम डिफरेंट पीरियड। हम लोग जिस पीरियड में है इसमें आपको फल पे फोकस करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फॉलो द प्रॉपर पाथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो आफ्टर लाइफ होती है, आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, आपको किस तरह की लाइफ मिलेगी, क्या सैलरी वगैरह मिलेगी, ये सब चीजें देखने से आपका जो मोटिवेशन है वो आ जाता है, परमानेंट मोटिवेशन आता है, ठीक है। एंड एट द एंड आपको आइडेंटिफाई करना है आपका जो गोल है, उसे आपको क्या चाहिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब आप प्रिपेयर करोगे तो चांसेस ये है कि आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाए, तब आप उस स्टेज पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मुझे आईआईटी में जाके एमटेक करना है, आईएससी में जाके एमटेक करना है, या फिर मुझे किसी पीएसयू में जाके जॉब करना है। तो खुद को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो गाइज, खुद को कैटेगराइज कर लो कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। मैंने रिसर्च करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर मुझे अभी सीधा जॉब ही करना है, ठीक है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगराइज करो एंड इसके बेसिस पे अपना जो ड्रीम है उसे सेट करो। तो मुझे आईआईटी जाना है या फिर मुझे पीएसयू जाना है, राइट। तो दिस वाज दी थिंग्स गाइज, आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो भी पॉइंट्स है ये आपने आपके लाइफ में यूज करने चाहिए। अगेन मैं सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ, बाय मॉडिफाइंग दी नॉलेज। जो भी मैंने नॉलेज दिया उसको मॉडिफाई करो एंड अप्लाई करो। एज इट इज कभी भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मेरी लेवल ऑफ थिंकिंग अलग है, आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग अलग है। आपका वे ऑफ प्रिपरेशन अलग होगा, मेरा भी वे ऑफ प्रिपरेशन अलग था। तो जो भी आप लर्निंग्स करते हो फ्रॉम दिस सच सेशंस, इसको कभी भी मॉडिफाई करो एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, ओके। तो आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड Abhijit can take over from this. Yes. So, guys, you can now post your questions. Chetan, Chetan, if you can go to the next slide. So, students who are from Gate 21 and Gate 22. So we have a batch for both Gate 2021 and 22. So this is the timing. This is the batch schedule. So for 2021, we are conducting lectures on Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 6:30 to 9, and Sunday. These are the timing as per branch of engineering. For mechanical students, it will be from 2 p.m. to 4:30 p.m. and 5 p.m. to 7:30 p.m. Those sessions होने वाले हैं. So this is what the fees is, and we are giving concession till 15th of August. Okay, so ये बैच फुल ऑनलाइन होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है दे कैन गेट बैक टू अस। आवर नंबर इज 9004384232। आप लोग उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, मैं चैट में लिखूंगा नंबर। अभी चैट मैंने ओपन कर दिया है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। उसके बाद केतन, इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so this is the fee structure and batch schedule for GATE 2022. So third year के students है, और sorry third year के students तो अभी obviously 2021 भी attempt करेंगे, लेकिन जो second year के students है and third year के students है उनके लिए भी ये batch है. So this is what for mechanical students 6:30 to 9 Saturday and Sunday. This is the timing and this is the fees. Okay. So yes, so questions अभी आने start हो गए, so we will take few questions. So अभी अपने पास है थोड़ा time, we have 10 to 15 minutes. We'll take few questions. So can I give GATE in third year and fourth year again? Yes, Chetan Lee. So Chetan Lee has asked this question. You can you can take GATE n number of times. There is no age limit, and you can start from third year of engineering. मतलब आप third year से eligible हो जाओगे. Okay, so the answer to this question is yes. Shivam Pandey ने सर पूछा है that tell us that as third year students of mechanical, how we cope up with our semester and GATE. Ketan. Yeah.
So this question is for I can see you. the question. So yeah. So शिवम पांडे ने पूछा है. yes. So the question is, sir, as a third year student mechanical, how to cope up with our semester and gate 2? तो द गुड आंसर तो दिस इज, देखो आपको यही समझना है, मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए आपने कि जो भी आप थर्ड ईयर में सीख रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो आप शायद हीट ट्रांसफर सीखते हो, देन डायनामिक्स ऑफ मशीनरी सीखते हो, राइट? ये वैरी करता है अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. सो आप उन्हीं सब्जेक्ट को उसी पर्टिकुलर लेवल में फिक्स कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट जो है गेट के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं तभी पढ़ लूंगा, ठीक है? एंड आपको टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो फॉर 6 मंथ, वेयर एज गेट में आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है? तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में आप जितना टाइम देते हो ना, वो थोड़ा कम कर सकते हो, और आप गेट में ज्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये थर्ड ईयर में आप आ चुके हो, तो अभी बहुत कम टाइम है. मतलब नेक्स्ट ईयर शायद आप एग्जामिनेशन दे दो और गेट 2022 में भी, राइट? तो जो भी अपना 6 सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर के, उस पे आप फोकस जब करोगे तो गेट स्पेसिफिक भी इसमें एडिशनल करते रहना. जैसे हीट ट्रांसफर की अगर बात करूं तो हीट ट्रांसफर में आप देखोगे कि आप ही जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, उसी को सॉल्व कर दो. मतलब आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ रहे हो एंड उसी सब्जेक्ट को आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो, मतलब एक साथ आप दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम कुमार पाठक से. ही वांट्स टू नो व्हाट इज इंजीनियरिंग साइंस. एक्सी का पेपर के बारे में बताया आपने, या थोड़ा एक्सी अगर क्विकली इंजीनियरिंग बता. साइंस. हाँ, तो ये ऐसा है कि तो करंटली इंजीनियरिंग जो है वो साइंस इट का इज पेपर, अल्टरनेटिव. यस यस. यस सर, गो ऑन. तो हाँ, इट इज ऑल्टरनेटिव, और उसमें ऑप्शंस है आपको. जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स इज फिक्स्ड, 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड एंड 15 मार्क्स मैथ्स इज फिक्स्ड. रिमेनिंग आप 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, उसमें ऑप्शन है. सो वो मैकेनिकल से काफी रिलेट करते हैं, मैकेनिकल के सब्जेक्ट से, सेम सब्जेक्ट से. तो और अभी क्योंकि फॉर गेट 2021 IIT बॉम्बे सेड दैट यू कैन टेक 2 पेपर. एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा. सो प्राइमरी पेपर अगर आपका मैकेनिकल है, यू कैन टेक इंजीनियरिंग साइंस एज द सेकेंड ऑप्शन. सो वो है. तो उसका अगर आपको सिलेबस जानना है ना, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट ऑल्सो, gate.vidyalanka.org. वहाँ पे गेट 21 नोटिफिकेशन में आपका उसका ब्रोशर में पूरा डिटेल सिलेबस है उसमें. सो यू विल बी गिवन ऑप्शन ऑफ आई थिंक 6 सब्जेक्ट. आउट ऑफ दोस 6 यू हैव टू चूज एनी 2. शाइबाज ने पूछा है हाउ वी विल नो विच स्लॉट 9 to 12 और 2 to 5. ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा कौन सा सेंटर है. इट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच सेंटर्स यू आर सिलेक्टिंग. आपको 4 सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो उसके बेसिस पे आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा. सो इसमें लेकिन मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. एडमिट कार्ड में जैसे आएगा उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. सर एक क्वेश्चन आप ले लो. Did you avoid completely social media? Please, can you repeat the revision method? According This to was me, asked by complete Vishal. social media should not be avoided. It should be like आप उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करो. जैसे फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे पेजेस हैं जो आपको हेल्प करते हैं रिगार्डिंग वैकेंसीज, रिगार्डिंग एनी अपडेट. तो मेरे ख्याल से ये आप उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी कुछ ऐप्स है, जैसे मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो इंस्टाग्राम वगैरह, ये सब चीजें मैंने यूज नहीं की, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं, उसमें मतलब कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव चीज नहीं मिली. अगर फेसबुक देखूं तो बहुत से ऐसे पेजेस है जिससे आपको रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन मिलती है, एंड विच इज वेरी फास्ट. इसीलिए एक तरह से आप उसका कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हो. हाँ, वो डेली बेसिस पे अपडेटेड होता है, आपको नोटिफिकेशन आता है. सो व्हाई नॉट. हाँ, राइट. हाँ. और उसके बाद साहिल ने एक क्वेश्चन पूछा है कि विल ONGC बी प्राइवेटाइज. देखो यार, प्राइवेटाइजेशन का जो भी चल रहा है, इसमें आपकी जो लेवल जॉब होती है ना, जब आप एग्जामिनेशन देते हो, इंटरव्यू देते हो, एंड लेटर से आप ONGC में प्लेस हो गए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो जॉब है इट इज ऑफिसर लेवल जॉब विच इज एट लेवल 10. तो जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, इससे लेवल 10 की जॉब पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये किसी को नहीं पता. ओके, तो प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, देन ऑल्सो ONGC विल रिक्रूट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स. एंड अगेन ये प्राइवेटाइजेशन होता है या कॉर्पोरेटाइजेशन होता है. Right. And even if ONGC is privatized, they'll need good resources, right? और अच्छे resources उनको कहाँ से मिलेंगे? जो engineers gate qualify करेंगे, these are good resources. तो वो लोग obviously वही hire करेंगे.
हाँ, तो as simple as that. अक्षय सोहानी ने आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. सर, you mentioned about preparing notes. When I start making notes, it's like I write each and every definition. So it's equivalent like studying whole reference book. So what all things should we include in our notes? वेल, नोट्स राइटिंग देखो, पहली बात तो नोट्स में वही चीजें लिखनी है जो आपको नहीं पता. ऐसे ऐसे नहीं कि मतलब सर ने कुछ चीजें बताई, आपको ऑलरेडी पता है तो भी आप उसे लिख रहे हो. नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए. जो भी आपको नहीं पता वो आपने लिखना चाहिए. इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सभी चीजों को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखो, जस्ट लाइक आपके रेफरेंस बुक में लिखा होता है वैसे नहीं. यू हैव टू उसको आपने शॉर्टकट में लिखना है, ठीक है. उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना गाइस, वो समझना है. आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाएंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे मेरे नोट्स होने चाहिए. इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लो, आपको आइडिया आ जाएगी कि मेरे नोट्स किस लेवल पे बनाने चाहिए. Right. Again, ओमकार ने पूछा है कि is there a XE exam for other branches? एक्चुअली इंजीनियरिंग साइंसेज में जैसे मैंने पहले ही बताया है, उसमें आपको 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है और वो सभी ऑप्शंस इज लाइक सिमिलर टू मैकेनिकल सब्जेक्ट्स. तो आप एक बार वो सिलेबस देख सकते हो. जनरली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कौन से 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं, केतन, इफ यू कैन? एफएम एंड सॉम. हाँ, 4 सब्जेक्ट है सर एक्चुअली, एफएम, सॉम, मटेरियल साइंस एंड थर्मोडायनामिक्स. जो मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही बहुत डिटेल में पढ़ते हो. हाँ, राइट. सो वही है, एक्सी के पेपर लेने का एक एडवांटेज ऐसा है कि आप दोनों पेपर चूज कर सकते हो. सो अभी ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप मैकेनिकल आप एज ए प्राइमरी पेपर ले सकते हो. अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, आपको खाली दूसरा ऑप्शन एक्सी ही है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं. तो अगर आपने मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर किया, आप सॉम और थर्मोडायनेमिक्स ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने वाले हो, तो आप एक्सी के पेपर भी ले सकते हो 2 सब्जेक्ट चूज करके. तो ये थोड़ा सा लिबर्टी दिया है इस बार आईआईटी बॉम्बे ने. सो यू गाइस कैन यूज दैट एज वेल. क्या, क्योंकि एक्सी में मुझे लगता है कंपटीशन कम हो सकता है, तो आपका रैंक आने का चांसेस है अगर आप मैकेनिकल भी दे रहे हो और एक्सी भी साथ में दे रहे हो. तो मेरे ख्याल से दोनों ही देने चाहिए. योगेश यादव ने देने चाहिए. राइट. तो जो लोग मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कीप दैट एज योर प्राइमरी ऑप्शन एंड एक्सी एज योर सेकेंडरी ऑप्शन. आपको दोनों एग्जाम का लेकिन फीस अलग से भरना पड़ेगा सेपरेटली. सर मेरे ख्याल से एक्सी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका जो अल्टीमेट टारगेट है ना, वो आईएससी बैंगलोर होना चाहिए, ठीक है. एंड अगर आपको आईएससी बैंगलोर में जाना है, देन आपको लेस देन 150 रैंक लाना चाहिए, ठीक है. तो ये टारगेट होना चाहिए कि आईएससी बैंगलोर में जब आप कोई भी डिग्री लेते हो, देन इट इज वेरी गुड, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड. सो विद्यालंकर में भी इन द पास्ट वी हैव स्टूडेंट्स who have trained with us for mechanical engineering, और उन लोगों ने एक्सी के पेपर भी लिया है. लास्ट ईयर आप देखोगे राजेश्वर गुप्ता करके है, कि दोनों अभी आईआईटी बॉम्बे में है. सो दे हैव सिक्योर्ड गुड रैंक. एक को AR 7 आया था, एक को AR 18 आया था. सो वी हैव ए इंटरव्यू वीडियो ऑफ बोथ ऑफ देम YouTube में. आप लोग जाके चेक कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत डिटेल में पता चलेगा. यस, या. सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर इंटरव्यू फॉर PSU जॉब्स टू आफ्टर क्रैक इंटरव्यू. मतलब वो ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि गेट के बाद भी PSU जॉब्स के लिए इंटरव्यू है क्या? यस, गेट के बाद PSU के उनके इंटरव्यू होते हैं रिस्पेक्टिव. एंड आपको जो फॉर्म फिल करना है वो गेट से पहले फिल करना है. मतलब जैन तक फॉर्म आते हैं, जैन दिसंबर तक, एंड उसके बाद एग्जामिनेशन जो है वो फेब में होता है. अक्षर ने पूछा है कि केटीज इफेक्ट करेंगे क्या आईआईटी के एडमिशन प्रोसेस? केटीज इफेक्ट नहीं करते, कोई इशू नहीं है. हाँ, आपका जो पॉइंटर है वो 6.5 अबव होना चाहिए, और लाइव केटी नहीं होना चाहिए. पास केटी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. साइवास ने पूछा है हाउ विल वी नो. अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है. हाउ टू क्रैक द PSU टू डू जॉब इन BARC में जॉब कैसे मिलता है, ऐसा गणेश ने पूछा है. आई थिंक ही इज फ्रॉम पुणे. और BARC का ऐसा है कि BARC के 2 एग्जाम है सर. 2 एग्जाम इन द सेंस, एक तो वो गेट से एंट्री लेंगे, या फिर उनका एक सेपरेट एग्जाम भी है. तो आप अगर गेट से कर रहे हो, आपका स्कोर सिलेक्ट हो गया उस लेवल तक, तो अच्छी बात है. नहीं तो आप उनका एग्जाम भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है. उनका एग्जाम भी गेट के लेवल का ही होता है, तो उसके 2 एंट्री है, तो अच्छी बात है. BRC का इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंटरव्यू ही होता है. इंटरव्यू देना, कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर इंटरव्यू. ओके. दिव्या का क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन वेदर वी शुड गिव गेट इन थर्ड ईयर, दैट इज गेट 21 और गेट 22. थर्ड ईयर की स्टूडेंट है वो. मुझे लगता है गेट 21 देना टोटली चाहिए आपको. यस.
एंड इट डिपेंड्स ऑन योर आप सर प्रिपरेशन। बताओ। या मेरे ख्याल डिपेंड्स से ऑन आपका प्रिपरेशन जैसा है उस पे डिपेंड करता है वो। लेकिन आप मतलब फर्स्ट ट्राई के लिए ऑब्वियसली मुझे लगता है आपको देना चाहिए यस गेट यस, पे गेट। हाँ वो तो है सर। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि मुझे गेट देना हाँ है, देन हाँ आप एक बार ट्राई कर सकते हो, एटमॉस्फेयर फील कर सकते हो, सिस्टम देख सकते हो वैसे। हाँ, वो एक्सपीरियंस आपको एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। यस उससे तभी ज्यादा और आएगा। क्या लर्निंग हो सकता है। यस, हाउ टू राइट। प्रिपेयर फॉर पीएसयू एग्जाम्स, इंटरव्यू फॉर पीएसयू एग्जाम्स, सी योगेश ने द थिंग पूछा इज है। कि इंटरव्यू कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप गेट में अच्छा खासा प्रिपेयर कर लेते हो तो वो पीएसयू के इंटरव्यू जो होते हैं वो फॉर्मेलिटी रहते हैं। दे विल आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस एंड मेजरली इट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, क्योंकि बहुत सी पीएसयू जो है वो 85% वेटेज जो है वो गेट्स के स्कोर को देती है, एंड 15% जो वो पीएसयू का इंटरव्यू जो होता है उसके वेटेज पे होता है। इसीलिए अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है देन यू विल फाइंड कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वही एक्सी के पेपर के लिए कि सिमिलर सब्जेक्ट चूज करना चाहिए कि हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स और नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 4 सब्जेक्ट दिए इसका सर ऑप्शन उन्होंने, है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ उसमें से कोई ये भी दो, उसमें से कोई भी दो। और उसमें आप देखो, आप कौन देख कौन सकते से हो यहाँ पे सब्जेक्ट, ए बी हाँ, सी डी, राइट, इनमें से आप कोई भी जी एच दो तक ले है सकते शायद हो। ना। हाँ हाँ, कोई राइट भी राइट। दो ले सकते हो। यस। सो अक्षय ने फिर से पूछा है, कैन वी गेट गिव गेट इन थर्ड ईयर? यस, यू कैन गिव गेट इन थर्ड ईयर। ये इस बार से नया नोटिफिकेशन में बताया गया है आईआईटी बॉम्बे के कि आप लोग थर्ड ईयर से गेट ले सकते हो। व्हाट्स द रैंक टू गेट जॉब इन ओएनजीसी? ऐसा सुधांशु ने पूछा है। ओएनजीसी का ऐसा होता पर्टिकुलर है अभी, यार कि हाँ, कि जनरली बोलिए उनका जो बोलिए सर। रैंक है, रैंक रिलेटेड नहीं होती। ओएनजीसी का जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ जो होता है वो बहुत ही नीचे तक होता है। मतलब गेट स्कोर जिनका 700 तक है सर, वो भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू, ओएनजीसी एक ओ, ऐसी पीएसयू है जिसमें इंटरव्यू ज्यादा मैटर करता है। उन्होंने इंटरव्यू का वेटेज जो है वो ज्यादा दिया हुआ है, इसीलिए उनका जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा कम होता है। राइट। तो वही है, जैसे जनरली पीएसयू रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका मैक्सिमम वेटेज गेट को रहता है 80 to 85% वेटेज। लेकिन व्हाट यू हैव सेड इज अगर 700 तक है कट ऑफ ओएनजीसी, ठीक है, तो उसके इसका मतलब है कि ज्यादा वेटेज आपका इंटरव्यू प्रोसेस में होगा। राइट। यस सो अभिषेक पांडे, क्या हमें गेट मैकेनिकल के फीस और एक्सी के फीस अलग भरनी होगी या 1500 में यस, दोनों अलग ही भरनी अलग होगी। अलग भरनी होगी आप लोग? हाँ। उसके बाद सविता ने पूछा है, सर कैन यू गाइड अस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट अलोंग विद गेट प्रिपरेशन? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यस आई कैन। देखो ऐसा है कि एक्चुअली ये 5 मिनट में बताने वाली चीज नहीं है सर। अच्छा लाइक, नहीं, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब आप गेट के लिए प्रिपेयर हाँ करोगे, इनडायरेक्टली यू आर प्रिपेयरिंग जनरल एप्टीट्यूड, जो आपका इंटरव्यू में काम आएगा। प्लेसमेंट इंटरव्यू में बहुत सारे एप्टीट्यूड कॉमन ही होता है। ओके, जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू वो आप क्रैक कर सकते हो, प्लस यू विल बी ऑल्सो गुड एट टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो जब आप सेकंड राउंड में जाओगे, जब टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में जाओगे, तो आपका ऑटोमेटिकली हेल्प होगा। लेकिन कुछ कुछ कंपनी का स्पेसिफिक क्वेश्चनियर रहता है। जैसे आप गेट में पास एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स है, फॉर एग्जांपल जो भी एक्सवाइजेड कंपनी आपके कैंपस में विजिट करेगा, उनका आप प्रीवियस क्वेश्चंस उनके वेबसाइट में रहता है प्लेसमेंट के, आप वो एज ए आप उसको देख सकते हो एक बार एज ए मॉक टेस्ट। और बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ पे आपको कैंपस प्लेसमेंट के जो रिटन इंटरव्यू रहते हैं फर्स्ट राउंड, वो आपको उसका जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पोर्शन आर सिमिलर टू गेट, सो एक वो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। एंड प्लस सिंस यू विल बी गुड एट टेक्निकल सब्जेक्ट, सो यू कैन इजीली क्रैक द सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू। जब टेक्निकल राउंड होगा तो आप बाकी लोगों से तो एटलीस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। दैट्स व्हाट आई फील। So we'll go to the next question. संकेत ने पूछा है, if done with technical, how can we start revising? How many subjects we need to do for daily revision and how can we plan? देखो मेरे ख्याल से अगर आप नॉर्मल भी पढ़ते हो, मतलब प्रॉपरली पढ़ रहे हो लेटर से, तो 2 वीक्स से ज्यादा आप कोई भी सब्जेक्ट को याद नहीं रख सकते विद परफेक्शन। तो मेरे ख्याल से 2 वीक्स जो है वो आपका रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। लेटर से मैंने थ्योरी ऑफ मशीन कंप्लीट कर दिया आज, तो आज से 2 वीक बाद मैंने उसका रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो 2 वीक्स का जो टाइम है मेरे ख्याल से, ये रिपीटिंग साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक उदित ने पूछा है कि अगर ब्रेक में कैजुअल गेम्स खेलूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद खेलता हूँ, खेलता था भी, खेलता भी हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन चाहिए आपको। अगर ब्रेन को हाँ, थोड़ा रिलैक्स करना है, हाँ, तो आप खेल 100% सकते टॉर्चर हो करने उसमें। की जरूरत नहीं है खुद को। हाँ हाँ। और सेकंड थिंग इज बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो, बस यस हो यस। गया। और अक्षय ने फिर से
क्वेश्चन पूछा है, गेट क्रैक करने के बाद भी वहाँ 9 राउंड्स होते हैं क्या? लाइक कोडिंग एंड ग्रुप डिस्कशन, डज विद्यालंकर फोकस ऑन इंटरव्यू? 9 राउंड्स मतलब 9 राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं क्या कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, इतना कहीं नहीं होता। I don't know. Like, see, as far as Vidyalankar is concerned, we do a post-gate guidance session, okay? जिसमें केतन भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे हमारे फैकल्टीज है जो लोग ऑलरेडी who have been there, done that. कुछ हमारे पास रैंकर्स है, पास स्टूडेंट्स है, जो लोग आते हैं ये सेशन के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के रैंक के बेसिस पे, उनके स्कोर्स के बेसिस पे हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि यू कैन गो टू दिस कॉलेज, यू कैन अप्लाई टू दिस इंस्टीट्यूट, यू कैन अप्लाई टू दिस पीएसयू। और किसी का अगर रैंक थोड़ा कम है, वी ऑल्सो एडवाइज देम लाइक डिफरेंट ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर प्राइवेट में जाना है, कोई अगर रिपीट करना चाहता है तो उनको कैसे रिपीट करना चाहिए, उनके लिए भी हम लोग अलग से सेशन करते हैं। ओके, सो वी डू कंडक्ट दिस सेशंस और जनरली ये अप्रैल या अप्रैल मंथ में होता है, मार्च, क्योंकि मिड ऑफ मार्च में आपका स्कोर आ जाएगा गेट का, उसके बाद अप्रैल में हम लोग ये सेशन करते हैं। सो इस साल बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये नहीं हो पाया, बट हम लोगों ने ऑनलाइन जितना हम लोग हो सके उतना स्टूडेंट्स को हम लोगों ने हेल्प किया। बट आप लोगों के टाइम में ऑब्वियसली हम लोग डेफिनेटली करेंगे। विद्यालंकर डू प्रोवाइड पोस्ट गेट गाइडेंस सेशन। शिवम पांडे का क्वेश्चन है, सर एज एग्जांपल वी कंप्लीटेड DOM थ्योरी पार्ट, देन फॉर डूइंग न्यूमेरिकल वी शुड गो फॉर सॉल्विंग Kurmi numerical first and then gate workbook, or directly go solving gate workbook? Please tell strategy for solving numericals. सी खुरमी न्यूमेरिकल्स ऐसे नहीं है कि आपने सभी करने हैं, ठीक है? तो खुरमी में जो भी मतलब लेट अस से गवर्नर एग्जांपल लेता हूं मैं, तो गवर्नर में हार्टनल गवर्नर है, उसका आपने एक क्वेश्चन कर लिया खुरमी से, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि उसमें और भी न्यूमेरिकल्स है वो वैसे टाइप के हैं। तो टाइप का एक न्यूमेरिकल जो आपने करना है, इसके बाद आप PYQ सॉल्व कर सकते हो। Yes. तो इन शॉर्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन जो है इसमें so we'll take... एक टाइप का एक ही करा, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर गेट करने के लिए क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी है क्या? प्लीज टेल अस अबाउट MSQ क्वेश्चंस। सो ही हैज नॉट रिवील्ड हिज नेम। MSQ क्वेश्चन के बारे में आपने ऑलरेडी बताया, देयर विल बी 4 ऑप्शंस, और उसमें या तो 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है या 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। सो यू जो IAS का पेपर पैटर्न है, सो यू हैव टू आंसर ऑल ऑफ देम करेक्टली। इसमें एक चीज और है केतन, कल मैं पढ़ रहा था, अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत दिया, कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी डाउट रहेगा कि सर अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है और मैंने 2 करेक्ट किया है, मेरे को कुछ मार्क्स मिलेंगे क्या उसमें? आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर 3 ऑप्शन करेक्ट होता है तो आपको तीनों करेक्ट करना पड़ेगा, अगर 4 करेक्ट है तो आपको चारों ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा ये है कि MSQ में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डर था कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग रहेंगे क्या? नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, खाली MCQs में निगेटिव मार्किंग है, MSQ और न्यूमेरिकल में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? सो दिस इज अबाउट MSQ। व्हाट इज द फी ऑफ XC? सेम फीस है जो बाकी पेपर्स के लिए 1500 रुपया है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए वही सेम फीस है। फीमेल कैंडिडेट और जो रिजर्व कैंडिडेट्स है उनके लिए 750 है। Would you please give some suggestion for GATE 21 students? I think we are running out of time. I think उन्होंने पूरा सेशन लिया उसके ऊपर, मुकेश। अगर ये वीडियो हम लोग फिर से YouTube में अपलोड करने वाले हैं, जिन लोगों ने ये मिस किया है या फिर थोड़ा आगे का पार्ट नहीं देखा है, आप लोग प्लीज YouTube में जाके, हमारा पेज है विद्यालंकर क्लासेस करके, वहां पे जाके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आप लोग टाइप करना हाउ टू स्कोर AIR विदिन 500 फॉर गेट मैकेनिकल, ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है? और हम लोग फिर से शेयर भी कर देंगे आप लोग के साथ लिंक YouTube में। तो शुभम पावर ने फिर पूछा है, इफ वी स्टार्टेड स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, इज इट पॉसिबल टू क्रैक गेट विद सम गुड मार्क्स? इसके बारे में भी बताया है शुभम। केतन, आप फिर से कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? देखो ऐसा ही है कि देखो, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम शुभम, राइट? शुभम पावर। तो इम्पोर्टेंट एक ही चीज है कि 6 मंथ, मैंने पहले भी बताया था कि 6 मंथ है आपके पास, लेकिन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो पहले जब आप कॉलेज जाते थे, ये बहुत सी एक्टिविटीज करते थे, उसमें आपका बहुत टाइम पास होता था। अभी मेरे ख्याल से आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप उसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो 6 मंथ्स है ये मोर देन इनफ है टू गेट गुड मार्क्स। अच्छा, मैं सिर्फ और सिर्फ गेट क्रैक करने के लिए नहीं बता रहा, मतलब 20-30 मार्क्स के लिए नहीं बता रहा, मैं 60 मार्क्स का एम रख रहा हूँ। ओके, ठीक है। सो दैट्स इट। एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। KRP सर का अभी लेक्चर भी है, तो उनको लेक्चर अटेंड करने के लिए जाना है। सो जिन लोगों ने भी सेशन मिस किया, यू कैन चेक आवर
यूट्यूब चैनल, वहाँ पे जाके आप लोग वो ये वीडियो पूरा देख सकते हो. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर कंटेंट लाइक दिस. जो भी नए स्टूडेंट्स है जो विद्यालंकार से नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, उनके लिए वी हैव बैचेस जो हमने ऑलरेडी डिटेल बताया है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, फीस के बारे में आपको जानना है, शेड्यूल के बारे में जानना है, ज़्यादा डिटेल में जानना है, यू कैन गेट बैक टू अस एट आई विल शेयर आवर नंबर with everyone. So this is our number 9004384232. और आप लोग हमारा वेबसाइट विजिट करके वहाँ पे भी इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. उसके अलावा इफ यू वांट टू मेल मी, आई कैन गिव यू माय मेल आईडी विच इज abhijit.nath@vidyalankar.org. जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कुछ अगर अनसॉल्व रह गया, यू कैन मेल मी. आई कैन फॉरवर्ड दैट टू केतन सर एज वेल. उनका रिप्लाई आएगा तो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे. So thank you, Ketan, for giving this beautiful session where student got to know about how to score well and कैसे schedule बनाना है सब कुछ. So finally just कुछ अगर आप last में best wishes देना चाहते हो students को, and we will end this session here. Hello. Okay, so I think he has already left because he has a lecture now. So students, what I will do is मैं YouTube का लिंक यहाँ पे शेयर करता हूँ चैट बॉक्स में. जो लोग अभी है जुड़े हुए हैं उनको एटलीस्ट मिल जाएगा. So just wait a second. लोग विद्यालंकार क्लासेस सर्च करोगे तभी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. But I will give you the link. So this is the link. You can directly subscribe to our channel. और इसमें गेट मैकेनिकल का मैं और एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हो. That was obviously taken by a different faculty, but वो भी मैकेनिकल के रिलेटेड थे, तो आप लोग देख सकते हो. इसमें आप लोग जब चैनल पे जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे. जो एक्सी के वीडियोस है वो भी है उसमें. जो मैंने बोला था, हम लोगों ने एक्सी का वेबिनार एक इंटरव्यू सेशन किया था जय कुमार और राजेश्वर के साथ, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पे. और एक डेमो लेक्चर है, आप लोग वो डेमो लेक्चर भी देख सकते हो. दैट वाज बेसिकली टेकन बाय रोहल मालकर सर. तो ये डेमो लेक्चर भी आप लोग देख सकते हो. So that's it. Thank you everyone for joining. I hope आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला. And be safe and take care. All the best.